First, these are the standard shapes which we should know before starting the question on area bounded. Y square is equal to 4ax अगर आपके पास पैराबोला है तो that will be like this shape. ये x axis, ये y axis. तो ये आपका y square is equal to 4ax पैराबोला. Y square is equal to minus 4ax आपका ये पैराबोला हो जाएगा. Then we have x square is 4ay. ये पैराबोला आपका इस तरह से चलेगा. This will be the parabola which will be touching again at origin, and this will be your y-axis. This will be your x-axis. So x square is equal to 4ay is the parabola that will be of this shape. Fourth standard is this, that is here. This parabola will be x square is minus 4ay. These are the four standard parabolas you should remember. These all will be going to use in area of the bounded region. Y square is equal to 4ax, ये shape होगा. Y square is minus 4ax. X square is 4ay and x square is minus 4a. Now we have next one, if you remember, ellipse. ये आपका ellipse है a dash b dash, ये origin. ellipse की इक्वेशन हमारे पास आएगी x square by a square plus y square by b square come out to be 1. This is the equation of ellipse we have. ये point a0, this will be minus of a0, this will be 0b, and this will be 0 comma minus b. Okay. Then if you remember, any line if you have, the line's equation is y is equal to mx plus c. ये भी आपको याद रखना है. Where m is the slope of the line, c is the intercept it makes on positive x-axis. Yeah, positive y-axis, positive x-axis only. So this is c. C is the intercept on y-axis. Yeah. Positive जरूरी नहीं है, c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, हो सकता है लाइन नीचे से भी निकल जाए. Then we have one more result. Circle. If you have the circle x square plus y square is a square. ये वो सर्किल है जिसका सेंटर हमारा 0 0 होगा और रेडियस हमारी a होगी. This is the equation of circle. X square plus y square is equal to a square. Center is 0 0 and radius is a. और उसी तरह से हमारे पास एक और सर्किल है जिसका सेंटर हम h कॉमा k लेके चलते हैं, रेडियस हम a लेके चलते हैं. देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज a स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल है व्हेन सेंटर इज h कॉमा k एंड रेडियस इज a. h के सेंटर कोऑर्डिनेट है, रेडियस आपकी a है, इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी सर्किल. ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए. अब हमारा काम है एरिया बाउंडेड बाय कर्व. एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन अगर हमें कैलकुलेट करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं. एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, if you have a curve y is equal to fx, ये आपके पास एक कोई कर्व है
and these are the boundaries we have, x is equal to a, और यहाँ है हमारे पास x is equal to b, and we have to find out the area bounded by this curve x-axis and by x is equal to a and x is equal to b. अगर ये कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये स्ट्रिप आपको दिखानी पड़ेगी एग्जाम में, ये dx होगा, ये y होगा, और ये dx a से b तक ये पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये एरिया आपको पूरा कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय x is equal to a and x is equal to b. So this is the required area. When you calculate, it will come out to be integration a to b and then y dx. ये आपका फॉर्मूला होगा, रिक्वायर्ड एरिया a to b y dx. y का मतलब हुआ हमारा ये वाला रिजल्ट और dx आपकी ये थी, और dx है तो x की लिमिट हमारी a से b तक चली। ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हो गया। इसी तरह से हमारा दूसरा एरिया निकाल सकते हैं हम। अगर कर्व हमारा इस तरह का है, x इज इक्वल टू एफ वाई लिख लेंगे हम इसको, और लिमिट हमारी इस बार यहां से चलेगी y इज इक्वल टू a एंड दिस इज y इज इक्वल टू b, और ये हमारे पास स्ट्रिप काउंट होगी, और ये वाला पार्ट हम dy काउंट करेंगे, ये x काउंट करेंगे, एंड दिस एरिया व्हेन यू कैलकुलेट this required area will be equal to, again the limit will go from a to b and now this will come x into dy. तो ये हमारे पास एरिया कैलकुलेशंस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कुछ, और फिर उसके बाद हाउ टू गेट द एरिया वी शुड नो दैट। वन मोर थिंग नोट हियर, one more thing we should note here, any curve if you are taking, write down please, this is also important result. Any curve if have y terms, if has y terms all even, sorry, y terms with all even powers, that curve will be called symmetric with x-axis. That curve will be symmetric with x-axis or symmetric about x-axis. In any curve, if you have y term, whatever y terms are there, if they are coming with even power, we will say the curve will be symmetric about x-axis. Same way, if the terms of x whatever present, if they are coming with even power, अगर हम x की even power है हमारी, जितनी x की power है वो सब even अगर है हमारे पास, then we will say if all the even power of x are there, x की जितनी power आपके पास involve हो रही है, if they all are of even power, we will say it will be symmetric about y axis. देख लो ये रखा, x square is 4ay, यहाँ पर x की केवल एक टर्म आ रही है एंड दैट इज कमिंग इवन, तो ये जो है ये y के अराउंड सिमेट्रिक होगा, ये y एक्सिस है, इसका इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया बिल्कुल आइडेंटिकल चलेगा, सो वी विल से दे विल बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर हम लें तो हमें पता है ये वाला कर्व था, ये था, ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक देगा, ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक देगा, ये आपको याद होना चाहिए। x स्क्वायर की टर्म आ जाए, x की पावर इवन आ रही है तो y सिमेट्री, y की टर्म आ रही है तो x की सिमेट्री, और अगर सिमेट्री है तो हम एक साइड का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं, वो अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे, दैट विल बी मोर क्लियर। राइट डाउन प्लीज, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, find the area bounded by the parabola y square equal to 4ax and its latus rectum. Find the area
bounded by the parabola y square is equal to 4ax and its lattice rectum. ये आपका पैराबोला हो गया, y square is equal to 4ax, ये पैराबोला होगा, एंड ये इसका कहीं फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए a,0, ये याद रखना है आपको, एंड अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर हो, एंड कट द पैराबोला एट 2 points and passing through focus also. फोकस से पास होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, then we will say this will be the area we should calculate. ये आपकी lattice rectum है. Lattice rectum is a line perpendicular to the axis of the parabola and passing through its focus. फोकस से भी पास हो और perpendicular to the axis चले. If you want this area, first thing we should know this area or this curve is symmetric about x-axis. Curve is symmetric about x-axis. X-axis के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है. X-axis के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसका मतलब हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें, ऊपर वाला. ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसको ए ले लिया पॉइंट को, इसको हमने ले लिया, यहां एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, तो और ये अगर ई पॉइंट ले लो, ये एफ ले लो. तो पहले तो हम लिख दें रिक्वायर्ड एरिया क्या है. दिस इज एरिया ए बी सी डी ई एफ ए. And as it is symmetric about x-axis, तो आप क्या करो, केवल ये वाला एरिया निकाल के इसका डबल कर दो. सिमेट्रिक का मतलब जितना एरिया ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा. तो आई से ट्वाइस एरिया ए डी सी बी ए. अब अगर ये एरिया निकालना है हमको, ये वाला, तो इसकी लिमिट यहां से यहां तक चलेगी. x यहां पर है 0 और यहां x है a. सो द रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, 2 तो ये है ही, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से a तक. फिर ये कहा था आपसे dx है और ये y है, तो आई विल राइट दिस एज y dx. व्हाट इज y वैल्यू हियर, क्योंकि ये dx है तो ये x की टर्म्स में आना चाहिए, तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, √4ax. So it will come twice 0 to a root of 4ax dx. इसका ये 2 बाहर आ जाएगा, तो आई राइट ट्वाइस का हो गया 4, रूट ए भी आपका बाहर आ जाएगा, ये रहा रूट ए, और ये हो गया हमारे पास 0 to a root x dx. And this root x dx, इसको आप लिखेंगे x power 3/2 by 3/2, and the limit will go from 0 to a 4 under root a. And then it will come 4 to the 8 root a by 3. और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 to the 8 by 3 root a, और यहाँ आ जाएगा आपकी बार a power 3/2 minus 0. a power 3/2 and root a, it will be a square. तो आंसर come out to be 8a square by 3. आगे इसमें स्क्वायर यूनिट और लिखना, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका. Because this is the area, so we should know this is the area 8a square by √3. 8a square by 3 square unit.
One more question, write down please. Using integration, find the area of the region bounded. Find the area of the region bounded between x is equal to 4 and y square is equal to 16x. इन दोनों से एरिया बाउंडेड आपको कैलकुलेट करना है. Yes, please. Y square is equal to 16x. So is it y square is equal to 4ax फॉर्म हो गई है? तो ये आपका y square is equal to 4ax. That is y square is equal to 16x this time. And x is equal to 4. X is equal to 4 कौन सी लाइन आती है? ये आती है. So we want the area bounded by this parabola and x is equal to 4. इन दो से एरिया कैलकुलेट करना है जो बाउंड हो रहा है. This is origin I am taking. Let it be taken as A point. Here it is B point. Here it is S point. यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं. Let it be C point. यहाँ D ले लो. This total area is to be calculated. And if you want this total area, I told you it is symmetric about x-axis. क्योंकि y square आ रहा है, तो you should say this curve is clearly symmetric about x-axis. तो ये dx हो गया, ये y हो गया. And then we go for required area. That will be twice. अब इसकी लिमिट चलेगी 0 से a. a कितना है इस केस में? 4a is 16. a comes out to be 4. इसका मतलब ये पॉइंट हमारा 4,0. So twice. Why it is twice? Because it is symmetric about x-axis. So twice y dx. And then it will be twice. Y क्या हो जाएगा? Root 16x. So I write down 4 root x dx. ये हो जाएगा 4 to the 8 root x dx. And then we write at 8 x power 3/2. लिमिट आपकी कहां से कहां तक होगी वो नहीं लिखी आपने. 0 से 4. So x power 3/2 by 3/2 and the limit is from 0 to 4. Then कितना आ गया ये? 8 to the 16/3 और ये हो गया 4 power 3/2 minus 1 0 सर. फोर पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये 3/2. तो ये स्क्वायर कट के 8 आ जाएगा. 16 8 108 या 128. हाँ भाई कितना हुआ? 128. 128/3 square unit is the answer.
Next question, write down please. Sketch the region bounded. Sketch the region bounded by y is equal to 2x minus x square and x axis. इन दो से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है. In this case, the problem which we are going to face is it is not the standard one. ये कोई स्टैंडर्ड हमारे को नजर नहीं आ रहा है. हमको स्टैंडर्ड पैराबोला है ये बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. कैसे बनेगा वो देखते हैं. We will write y. इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं. लेफ्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x. Right? Just to make this as a perfect square, we will write this as x square minus 2x plus 1 यहां किया. ये -1 है तो यहां भी -1 करना पड़ेगा. Both sides just to make it a perfect square. -1 यहां किया है तो इधर भी -1 करें. Now when you solve it, it will come out to be y minus 1 is equal to minus x minus 1 whole square. Or I should say x minus 1 whole square will be minus y minus 1. ये आपकी इक्वेशन बन गई. इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर. ये आ गया आपका -4ay. ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया वेयर कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई इज वाई माइनस 1. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. याद है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पैराबोला कौन सा होता था? वो पैराबोला ये होता है अगर आप ध्यान दो. इसमें पहली चीज जो हमारे पास आती थी वो वर्टेक्स 0 0 आता था. वर्टेक्स मतलब कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0. ये नहीं 0 है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं है. तो ये स्टैंडर्ड है तो यहां पर अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारा आएगा कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0. कैपिटल एक्स का मतलब हुआ x माइनस 1 0 और यहाँ y माइनस 1 0. इसका मतलब वर्टेक्स हो गया x is 1 and y is 1. ओके इसका मतलब ये पैराबोला यहां नहीं होगा, इसका वर्टेक्स यहां नहीं होगा, ये 1 1 पे ऊपर पहुंच जाएगा. तो अब अगर आप पैराबोला बनाएंगे, हाँ सर ये फिर से प्लीज एक्सप्लेन कर दो. ये पहला काम हमने इसको x स्क्वायर इज -4ay फॉर्म बनाया. क्या किया मैंने इसमें, ये y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ x की 2 टर्म आ रही थी तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यहाँ ऐड किया, प्लस 1 ऐड किया बट एक्चुअली माइनस था तो -1 ऐड हुआ, यहाँ भी -1 हुआ. तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इज माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर, और आई शुड से x माइनस 1 होल स्क्वायर इज माइनस ऑफ y माइनस 1, which you write as capital X square is -4ay. Capital X square is -4ay. That means the vertex अगर हम निकालेंगे तो इसका vertex आएगा कैपिटल X 0, इसका vertex आएगा कैपिटल Y 0. क्योंकि ये पैराबोला ये रहा और इसमें vertex क्या आता है 0 0, बट 0 0 फॉर दिस कैपिटल X एंड कैपिटल Y, क्योंकि ये इक्वेशन है हमारे पास. तो कैपिटल X 0 वर्टेक्स है, कैपिटल Y 0 वर्टेक्स है, बट क्योंकि ये वाला पैराबोला है तो इसका मतलब X और Y 1 1 पे जाएगा. इसका मतलब आपका पैराबोला का वर्टेक्स आपका 1 1 पे आएगा. शेप तो यही रहेगी, नीचे से ऊपर जाएगा, इसी तरह से यही शेप आएगी, शेप यही आएगी, बट वर्टेक्स यहां से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. अब एक और चीज है कि हमने कहा कि ये शेप तो रहेगी बट ये भी पता चले कि एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा. एक्स एक्सिस को अगर इसका कट निकालना है तो हम इसमें y इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि ये वाली शेप बनने वाली है, ये वाला कर्व बनने वाला है, ये वाला.
ऐसा कर्व होगा, मुझे ये नहीं पता ये कहां कट करेगा, यहां करेगा यहां करेगा, मुझे नहीं मालूम। तो इट मींस यू शुड नो वेयर इट विल कट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास y 0 होता है। y अगर 0 होता है तो हम इस इक्वेशन में y को अगर 0 डालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हमने x कॉमन लिया तो ये 2 माइनस एक्स 0, इसका मीनिंग हो गया x इज 0 एंड x इज 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स तो पहुंच गया 1 1 पे, और ये कट कहां कर रहा है, एक तो x 0 से जाएगा और x 2 पे जाएगा। ये पैराबोला हमारा इस तरह से रहेगा। वर्टेक्स शिफ्टेड एट 1 1, ये आपका 0 x 0 और ये x is equal to 2. So that means now the parabola which you will be having will be of this shape. थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये 1 1 पॉइंट है, ये 0 है और ये 2 है, तो पैराबोला will be going like this. And you want the area bounded by this and x axis. इसका मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया मुझे निकालना है। यहाँ y क्या था, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हमारे पास x 0 होगा, यहां पर x हमारा कितना था, 2। फिर वही काम करना पड़ेगा, स्ट्रिप ड्रॉ करें, ये हुआ हमारा dx, ये हुआ y। So when we go for required area, it will come integration 0 to 2 y dx, और y आपका ये रहा। Zero to 2 y dx means 2x minus x square into dx। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको दिक्कत करेगी। You will write 2x square by 2 minus x cube by 3, limit will go from 0 to 2, and now when you solve it, it will come 8 by 2 sorry, माइनस यहां से आ जाएगा 8 by 3, सेकेंड पार्ट 0 minus 0 हो जाएगा। And now when you solve it, your LCM come out to